prayer. Cameras on, okay? Everyone, cameras on and be on the gallery view. Join your hands. Om Hari Om Hari Om सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो. Everyone, how are all of you all doing? Let me know in the chats. And so, a very energetic start. Again, everyone clap. Clap with me. Full energy. Everyone should clap. Be on the camera, guys. Be on the camera. Clap and now congratulate yourself. I am a magician and I'm clapping for myself. I'm the best. I am a magician. Say everyone, hands together. Say, I am a magician. Everyone, each and everyone. Amazing Sailesh sir, Rakesh sir, Devash sir, Kashyap sir, are you doing? Manoj sir. If no action, then go out, okay? Action is mandatory, all right? Hands together, once again, come on. Hands together, and yes. Is it possible? Yes. Am I a magician? I am a magician. Say to yourself, I am my own brand. I am a magnet to miracles. Everything is possible for me, right? Give a thumbs up to yourself. And now, what do? Do your hands like this. Do your hands like this. What to do? Tell two other members in the gallery view that you all are magicians. Say to other members, you all are magicians. You all are magnet to miracles. Come on, say. Do your hands like this and bless all the members here. Use your mouth, everyone. Say, you all are magnet to miracles. Yes. Congratulate everyone, bless everyone. You all are magnet to miracles. Once again, clap. You have not just blessed yourself, but other members as well. And that's what we require as a community. And now, do you know the switches? Switches? Anyone knows? Let's start. Yes, amazing. These are the switches. Press your fingertips. Press it. These are your switches. Okay? Amazing. And now, do this. Close your fist, open it. Close, open. Close, tight kare, tight. Again open. Now feel, are you feeling some vibrations going out from your palm? Once again do. Close, strong, yes. Open, slowly. Feeling some vibrations? This is your energy. And where it needs to vibrate, on the right address. So what should be its address? Should it be the problems, the negative situations, the situations that you don't want in your life? Do you want to keep on juggling on those situations, or you want to evolve and get into a next level situation? Next level heaven. Yes? Yes? So let's do that. Okay, hands on your heart, everyone. Hands on your heart. Spine straight. Spine straight. Everyone, be on the camera. Okay, first, come on, be on the camera. There are so many people, but I can see only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people on the camera. Kindly first turn your cameras on.
unless I won't start. Each and every one. Type in the, jinka camera on hai, type in the chat section, other members, please turn on your camera, I want to proceed. मुझे आगे बढ़ना है, आप ऑन कीजिए कैमरा, then I'll be proceeding, right? Yes, everyone. Turn your cameras on, yes. Amazing, Naveen Verma sir, keep turning on your camera. Amazing. Okay. So let's turn on the music for you all. Okay. You let me know ना आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है? Okay. Able to hear it? Okay. Hands on your heart, everyone. Amazing. Hands on your heart, everyone. Close your eyes, spine straight. Spines must be straight. Say with me, loudly. Enough is enough. It's time that I change. Enough solving my problems, vibrating in the negative frequencies. Enough juggling in my current situations, current life. Now, I choose to change. I choose to evolve. I choose to enhance myself. I choose to stop juggling, stop solving, and start evolving. I today stop juggling and start evolving because I am my own brand. I am a magnet to miracles. I am a magnet to abundance, wealth, money, happiness, health, prosperity. I am the best. I deserve the best. And I receive the best from the universe. I am the luckiest. I am happiest. I am the richest. I am the one the world needs. मैं हूँ हर हाल के लिए और हर काल के लिए. मैं यहाँ अपना नाम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भारत का नाम पूरे विश्व में करने के लिए हूँ. For me, money is unlimited because money is spiritual and business is seva. Whenever I do seva, I open up my care account, my cash account starts to swell. And unlimited flow of money comes to me. Money flows to me effortlessly because I serve to this world, contribute back to this world selflessly. How much I grow, that much my business grows, my money grows. How much I evolve, that much my business evolves. The much I grow, that much my money grows. The much I share my value, that much money I receive from the market. I am my own brand worth 300 crores in 369 days. I am here to put a dent on this universe. I am unique. I am the best and I am receiving the best from this universe. You can.
Open your eyes slowly. Slowly open your eyes. Now, once again, what you have to do, you slowly close your eyes and just see yourself. How you want to see yourself. Maybe 5 years, 10 years from now. आप कैसे होने चाहिए? Your lifestyle, any luxuries, or like as a person, how do you want to see yourself? Okay. Now 1, 2, 3, close your eyes everyone. Visualize. How are you able to see yourself? A big smile on your face. See yourself having a big car, big house, great leader, influencing so many people, changing lives, helping people, solving problems of the people, getting love from the people. Can you see yourself? If you can, have a big smile on your face. I'm watching you all. Have a big smile on your face. Big smile. Yes. See yourself. Big smile. Keep seeing yourself. With a big smile, keep seeing yourself. Big smile. Smile रुकनी नहीं चाहिए. Big smile. Amazing. You all can slowly open your eyes and say with me. I will be unmuting you all. Okay. You all can unmute. 3, 2, 1. Say amazing. Hands, both hands on your heart and say amazing. 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 जोश में. Amazing. 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 Yes. Amazing. Amazing. Great. Amazing. Amazing. All right, everyone. So it's time for the tasks. And किन किन लोगों ने कितना कितना कर लिया है, please let me know in the chat section your progress. Or just tell me day 1, 2, 3 which day are you in. So we'll be revising. Let's see हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि it's a complete 40 days challenge. So हम लोग इसको फास्ट नहीं लेके जाएंगे, हम इसको बहुत स्लोली समझते हुए और खुद पे अप्लाई करते हुए अवेयरनेस के साथ आगे लेके जाएंगे. ठीक है पारितोष सर, सॉरी पुरुषोत्तम सर, अच्छा आप 3rd डे में आ गए. ओके. रेस्ट ऑल. Usha ma'am 3rd day. Okay, that means 1st day, 2nd day, 3rd day completed everyone. जिन जिन लोगों का हो गया है let me know. Okay. Excuse me. All right.
सो वी विल बी रिवाइजिंग इट. हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, हम लोग उस पर अवेयरनेस गेन करेंगे, ठीक है. और आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने क्या क्या नोट किया है, ठीक है, मतलब क्या क्या लिखा है आपने, ठीक है, सो दैट वी कैन एक्चुअली बी वेरी मच अवेयर एंड मूव अहेड, ठीक है. सी, पहला जो आपको करना है हर बार वो ये है कि 108 बार पूरे दिन में आप खुद को, व्हाट आई से, खुद को, ठीक है, ये 4 बातें बोलोगे. वो क्या है 4 बातें? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. अभी बहुत लोग बोलेंगे कि ये वेस्टर्न है, ये वो है. सी, ये एक्चुअल में वेस्टर्न नहीं है, ये हम लोग हमेशा से बचपन से करते आ रहे हैं. कब करते हैं हम लोग? जब हम किसी सुप्रीम पावर के पास जाते हैं. हम लोग क्या करते हैं? डू यू रिमेंबर जब हम लोग मंदिर जाते हैं, व्हाट डू वी डू? कोई बता सकता है? हम लोग क्या करते पहले? वी डू लाइक दिस. व्हाट दिस इंडिकेट्स? एवरीवन डू लाइक दिस. आप लोग करते हो ऐसे? भूल चूक क्षमा. यू डू? अगर इफ यू डू लाइक दिस, थम्स अप करते. दिस इज व्हाट? आई एम सॉरी. देन व्हाट यू डू? प्लीज फॉरगिव मी. हम लोग क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं, ऐसे गोल लगते हैं, ऐसे, यू नो, वी बो डाउन. Yes or no? That is what? Please forgive me. And then हम लोग उठते हैं, we do like this. Thank you. ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे भगवान को, थैंक यू भगवान फॉर गिविंग मी so much and so. ठीक है? And then I love you. ठीक है? We say to the God, I love you. ठीक है? Now, culture is the same, science is the same to connect with the universe. But different areas, different languages, different ways to do it. But ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं. We still have to continue it, but with a newer perspective. क्योंकि अभी तक maybe जैसा मैंने आपको इसको बताया, आपने अभी तक इसको वैसा नहीं देखा होगा. Yes or no? क्या आपको पहले से पता था इसका यही मतलब होता है जो हम लोग ऐसे करते? No, नहीं पता था. ओके, सो यू डिडंट नो द मीनिंग, सो इंटेंशन वॉज नॉट क्लियर, दस यू वर नॉट, यू नो, लाइक maybe like not clear on the intention, thus not getting results. But now when you will be doing it every day, see, क्या होता है ना, हम लोग के लिए बेंड डाउन करना, झुकना नीचे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और ये पूरा बॉडी को लाइक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मेंटल, फिजिकल, एवरी सिस्टम को अलाइन करने के लिए एट इन द मॉर्निंग ये करना ही चाहिए. ठीक है? सो वॉट यू शुड बी डूइंग एवरी मॉर्निंग इज़, आप पहले सुबह उठ करके ऐसे, हम लोग धरती माँ को नमन करने के लिए भी बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी एक साथ हो जाएंगी. इट्स काइंड ऑफ अ रिचुअल. आपको बस एक बार ये एक्टिविटी कर लेनी है हाथ के द्वारा. ऐसे तो आप पूरे टाइम 108 बार चैंटिंग करोगे ही मुंह के द्वारा. ठीक है? आई एम सॉरी, थैंक यू, ठीक है, वो वाली. बट जब आप सुबह उठोगे तो ये पक्का कर लेना लाइक दिस. ठीक है? आई एम सॉरी, फिर नीचे आप झुक करके वो करोगे. ठीक है? नमन करोगे. ठीक है? विच इज़ प्लीज फॉरगिव मी. एंड देन लाइक दिस, थैंक यू. ठीक है? एंड देन लाइक दिस, आई लव यू. ठीक है? And if you're doing this to the God or the supreme power, what is that? That is you. Tattvamasi, aham brahmasmi. Nothing is dual in this nature. Everything is one. You know that? We all are one at the level of energy. We all are one at the level of energy. Right? And once you do this, you're not only thanking yourself or the God, you're also thanking and saying sorry to other members of universe. Maybe जिनको भी आपने hurt किया है, या जो भी आपसे, you know, जिनसे आप hurt हुए. ठीक है? So like first day, like मतलब starting of the day ही, you are releasing all the negative energies and taking over all the positive energies. Okay? All right? So this is the very first thing that you are going to do. Okay? Now second thing जो मैंने आपको बोला है करने को, वो ये है,
सी इसको हम लोग स्टार्ट और ज़ीरो को काउंट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज डिजिट्स ऑब्वियसली ज़ीरो से शुरू होता है. फिर हम लोग डे 1 में जाते हैं. डे 1 इज़ अबाउट रीजन्स, गिविंग रीजन्स. मतलब अभी आपने आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोला. अभी बस डे 1 में आपको क्या करना है, इसके लिए रीजन्स दे देने हैं, ठीक है, कि क्यों आई एम सॉरी, क्यों थैंक यू, ठीक है, मैं खुद को क्यों थैंक करूँ, ठीक है. मे बी बिकॉज आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मे बी बिकॉज आई लिसन टू माई सेल्फ, मे बी बिकॉज आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. Okay, why I love myself. I love you, Vardhan, for being the way you are, being so like kind hearted, या जो भी, being so confident, या being a good speaker, कुछ भी, ठीक है, जो आपको लगता है कि I should be loving myself for this reason, ठीक है. So ये हो गया आपका I am sorry Vardhan for not listening to you sometimes, for not attending you, for not giving you enough care, enough love if you feel like that. Okay. So this is your day 1. Okay, that was day 0, like initial. एंड ये सारी एक्टिविटीज़ डेली करनी है, ठीक है. कुछ ऐसी चीज़ें जो डेली नहीं करनी वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक्सपेक्टेशन लिखना, ठीक है. सो डे 2 आपके लिए था कि आपको एक्सपेक्टेशंस लिखने हैं जो आपको है दूसरे लोगों से, ठीक है. सपोज़ इसने मेरे लिए ये नहीं किया, या मे बी पास्ट में मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, या एनीथिंग, या उस टाइम पर ऐसा हो जाता, या शायद होना चाहिए था. तो लाइक एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है कि आज तक इसने मेरे लिए ये करना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन फिर भी आप जहाँ हो तो राइट. तो अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि चलो कोई बात नहीं, वो हो गया, लेकिन उसका एडवांटेज क्या हुआ मेरी लाइफ में, ठीक है. अगर सपोज उसने उस टाइम पे मेरी बात नहीं मानी, तो एज अ रिजल्ट राइट नाउ अभी क्या चल रहा है, क्योंकि सी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में जो मेरे को लगा था कि एक्सपेक्ट किया था मैंने कि काश ये चीज़ नहीं होती, बट देन आई रियलाइज कि अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती, ठीक है. अगर वो चीज़ इंसिडेंट वहाँ नहीं हुआ होता, ठीक है, सो अभी मैं जो कर रही हूँ वो मैं कर भी नहीं सकती. आई वुड बी लाइक अ स्कूल स्टूडेंट गोइंग, मतलब वेरी नॉर्मल लाइफ. आई वोंट बी हेल्पिंग यू टू एनहांस योर फ्रीक्वेंसीज, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी. तो उस टाइम पे मे बी आई फेल्ट कि इट वॉज अ ह्यूज डिसएडवांटेज फॉर मी, बट नाउ आई एम फीलिंग इट एज अ ग्रेट एडवांटेज, ठीक है. तो हर एक चीज़ का एडवांटेज होता ही होता है. कम ऑन, यू कैन नॉट से कि वो सबसे बुरा चीज़ था, उसका कोई एडवांटेज नहीं है. हर एक चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. सो थर्ड स्टेप फॉर यू इज़ टू फाइंड कि अगर ये एक्सपेक्टेशन मेरी फुलफिल नहीं हुई तो उसके क्या एडवांटेज है मेरे लाइफ में, ठीक है. ऑलराइट. एंड अभी तक अभी आप देखना आपका माइंडसेट. ओके, दिस इज द फोर्थ स्टेप. ओके, हाँ. सो थर्ड स्टेप क्या है ना, आपको चेक मार्क करना था. हैव यू ऑल डन? जिन लोगों का मैंने डे 3 में देख रही हूँ, आपने चेक मार्क कर लिया कि इनमें से कौन कौन से एक्सपेक्टेशन है जो मैं फुलफिल करती हूँ अपने लिए. थर्ड डे में आपको क्या करना है, सेकेंड डे में एक्सपेक्टेशंस लिख लिए आपने, ठीक है, आपके क्लोज्ड वन से जो भी था. फिर आपने चेक मार्क कर लिया कि ये एक्सपेक्टेशंस मैं अपने लिए भी फुलफिल करती हूँ. सपोज अगर इसको मेरे लिए ये करना चाहिए था, हर बार जब मैं, सपोज पहले मेरा एक्सपेक्टेशन रहता था कि मैं अपने भाई को बोलूँ कि मेरे को पानी ला के दे, तो एक गिलास मेरे को पानी ला के दे, तो समटाइम्स ही वोंट गिव मी. सो आई वाज लाइक कि मैं इससे बड़ी हूँ, ये मेरा बात क्यों नहीं सुनता है, सुनना चाहिए इसको, like this. So I was like expecting, but then I understood कि नहीं, मेरे को खुद उठ के जाके लाना चाहिए. Don't be so lazy Vardhan. So a realization came. So आप ये देखो कि अगर आप उससे एक्सपेक्ट करें तो आप क्या वो खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है. आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप खुद उठ के पानी लेके आ पाओ. So टिक मार्क कर दो उसको, ठीक है. अब जितने चीज़ें आपने टिक मार्क नहीं की है, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं हुई है, अब डे 4 में आएंगे. फोर्थ स्टेप क्या है, एडवांटेजेस वाला, ठीक है. हमें एडवांटेजेस ढूंढ करके पता करने, क्योंकि अब देखना आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा. अभी तक जिस चीज़ के लिए आप दुख मना रहे थे कि ये हुआ ही नहीं, अब आपको उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगेंगी कि ये नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि गीता सार में भी लिखा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है. सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीज़न.
ठीक है. सो यू आर like very small as compared to the maker of the universe or the universe itself. ठीक है. So at the same time, at situations you have to understand कि आप dust particle से भी छोटे हो. ठीक है. और at situations you have to understand कि आप जो डस्ट पार्टिकल से छोटे हो वो पूरे ब्रह्मांड को इम्पैक्ट कर सकता है. ठीक है. सो ये चीज़ है. ऑलराइट, विद दिस मेंटालिटी फिर आप आगे बढ़ोगे कि सब तो अच्छा ही चल रहा है. ठीक है. जो यूनिवर्स ने मेरे लिए पाथ अलाइन किया है दैट्स द बेस्ट, और मेरे को बेस्ट देना है अपना, दैट्स ऑल. ठीक है. और जो भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा अगेन उसमें मेरे को एडवांटेज ढूंढना है. अगर अच्छा मिला वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला सपोज आई गॉट फेल्ड, then also what's the learning, what's the advantage. So always you are like success minded. ठीक है. winner minded. why? see, failures के ऊपर सक्सेस नहीं बनता. अगर आप उस एक्सपेक्टेशंस पर नेगेटिव रहोगे तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज काम करती है बट आपको नहीं दिखती. जैसे मैंने बोला कि एनर्जीज काम कर रही है, ठीक है, आपको ग्रो कराने में, बट आपको नहीं दिख रही है. सेम अप्लाइज ऑन नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो. ठीक है. नेगेटिव एनर्जीज भी काम कर रही है, आपको दिख नहीं रही तो क्या हुआ? इट इज वर्किंग, राइट. तो इसीलिए वो आपको पीछे ब्लॉक करके रखती है, तो आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा. ठीक है. सो ऑल दोज एक्सपेक्टेशन टर्न इट इनटू द एडवांटेजेस. ठीक है. दिस योर डे 4. ओके. once you do that, now what you feel, you are a winner because you have achieved. ठीक है. and failure feel नहीं होगा. और जब failure से हम लोग सीखते हैं, ठीक है, लेकिन फेलियर से सक्सेस का रास्ता नहीं पता चलता. सक्सेस सिर्फ सक्सेस मिलने से पता चलता है. अगर आप साइकिल चला रहे हो तो जितने बार आप गिरोगे, क्या आप साइकिल चलाना सीख जाओगे? गिरोगे तो बस गिर के उठना सीखोगे. जब आगे पेडल आप मारोगे, ठीक है, और आगे साइकिल 2 कदम 3 कदम मूव करेगी, तो आपको विनिंग पता चलेगा कि चलो इतना तो सक्सेस हो गया, अब 4 कदम भी चला जा सकता है, 4 बार भी चक्का घूम सकता है. ठीक है. लेकिन चक्का घूमे ही ना, बार बार गिरते जाए, सो नो फायदा. ओके. सो यू ऑलवेज हैव दिस थिंग कि ओके, कोई बात नहीं, इफ आई फेल्ड, बट नाउ व्हाट्स पॉजिटिव, बिकॉज ऑलवेज सी रिजेक्शन मे बी एज एन एम्प्लॉय, सेल्स पर्सन, एज अ लीडर, कि किसी ने बात नहीं मानी, कहीं भी छोटे से छोटी जगह, बड़े से बड़ी जगह, रिजेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम. द डायलॉग यू से टू योर सेल्फ आफ्टर यू गॉट रिजेक्टेड इज द प्रॉब्लम. वॉट यू से योर सेल्फ again and again. Okay. So you have to change that, and that as a habit will come when you do this exercise. How many of you feel कि ये चीज़ तो मेरे में होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, I have to give वही डायलॉग जो is required for me. ठीक है. जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है, मैं वही डायलॉग अपने आप को बोलूँगी या बोलूँगा और आगे बढ़ूँगा. ठीक है. ये रिक्वायर्ड है या नहीं है? So right now once again we are revising the complete exercise. ठीक है. again we'll take 4 days for it, और आपको पहले एक्सरसाइज के लिए 2 दिन प्रैक्टिस करना था, सो मे बी 6 days फॉर इट. ओके. सो अभी आराम से आपको वापस से सोच करके एक्सपेक्टेशंस और क्या एडवांटेज है वो एकदम आराम से करना है. ठीक है. बट अगेन स्टार्ट विद द डे 1. ठीक है. आई एम सॉरी, यू हैव टू राइट आई एम सॉरी, फॉरगिव मी एंड द रीजंस फॉर इट विथ योर नेम 108 times. But in the class, write it 7 times. Once you know initiate your action, you will at home you will complete it as a homework 108 times. ठीक है. So for the new people, आप सबको क्लियर है क्या टास्क है? Day 1 का you have to write I am sorry, your name, like I am sorry वरदान, for reason. Reason क्या है जो आपको लगता है? I am sorry my name, ठीक है, आपका नाम, for maybe not attending you or not listening to you or not taking enough care of you. ठीक है. फिर वैसे ही please forgive me for not treating you the way I should treat. ठीक है. and then for not giving you importance. ठीक है. you are saying this to yourself. ठीक है. then third line, thank you.
से योर सेल्फ थैंक यू। किस चीज़ के लिए आप थैंक करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लुक फॉर देम, ठीक है। लुक फॉर द बिगेस्ट रीजंस, आई शुड से थैंक टू माई सेल्फ, ठीक है। देन फोर्थ लाइन, आई लव यू, योर नेम, ठीक है। आई लव यू वरदान फॉर, ठीक है, रीज़न। क्लियर है सबको? दिस यू हैव टू डू, ओके ना। जिन्होंने कर लिया है उनको भी करना है, वी आर हैविंग अ रिविजन, ठीक है। Start doing everyone. I'll be turning on the music as well. Okay, you all have your notepads pen ना? New people, आपको एक proper notepad maintain करना है, ठीक है? राधे राधे। हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूँ देश का हरदम ध्यान, बाधाओं में विपदाओं में धीरज धरूँ बनूँ बलवान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, तन मन वारूँ जीवन वारूँ, होऊँ भारत पे बलिदान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूँ देश का हरदम ध्यान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान। मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंची? मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंच गई, गुड। एकदम क्लियर कट मैसेज समझ जाइए कि दोनों हाथ में रसगुल्ला नहीं मिलेगा, दोनों हाथ में रसगुल्ला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको वो इन्वेस्टमेंट तन मन और धन का देना ही पड़ेगा। जब तक आप जानते हैं ना कि हमारे चारों तरफ इनर्जीज़ है, और इनर्जीज़ को फेमिनिन बोला गया है। क्या है ये? मस्कुलाइन पावर नहीं है, ये फेमिनिन पावर है। और बहुत सारी हमारी शक्तियाँ जो है ना बलि मांगती है, कुर्बानी मांगती है, आपका समर्पण और आपका डेडिकेशन मांगती है। तो कुछ एक पार्ट को समझना होगा। अगर आप क्या चीज़ कुर्बान कर रहे हैं ना, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। अगर आपकी कुर्बानी में वो वाला अपना अजीज होगा, मैं क्या अभी कौन कौन बकरीद में बकरी काटा है, तो क्या है बकरी के अंदर, क्या है? मैं, क्या है? तो आपके अंदर का जो मैं से निकला हुआ जो तकलीफ है ना, अगर वो जाएगा कुर्बानी में, तभी जाके आप फलित होंगे। वो मैं हो सकता है जो मैंने कहा था आपको अपने डायलॉग में कि मिल्खा सिंह साहब दौड़ रहे थे, उनका कोच उनके साथ था साइकिल पे या स्कूटर पे, और वो मिल्खा सिंह बोल रहे हैं कि मेरा मुंह से खून आ रहा है, मेरा मुंह से खून आ रहा है, मेरा मुंह से खून आ रहा है। कोच क्या बोल रहा है? मिल्खा भाग, मिल्खा भाग। बोल रहे हैं मैं मर जाऊंगा, कोच साहब मैं मर जाऊंगा, मेरे मुंह से खून आ रहा है, मिल्खा भाग, मिल्खा भाग, मिल्खा भाग, मेरे मुंह से खून आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, मिल्खा एक चक्कर और, मिल्खा एक चक्कर और। ये कौन कर रहा था? ये कोच कर रहा था, क्योंकि उस कोच को पता था अब तक तो उसने अपनी औकात की दौड़ी है, और ये वाला दौड़ गया ना एक चक्कर, तो ही वो मेडलिस्ट होगा, तो ही जाके ओलंपिक में लेके आएगा। वो एक चक्कर आखिरी वाला ही चाहिए होता है। जब आप मरने वाले होते हो ना, जब आप मरने वाले होते हो, जब आपके मुंह से खून आ रहा होता है, उसके बाद भी आप नहीं रुकते हो ना। आपको हम लोग अपनी हालात बताएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। हम लोग कंट्रोल का चावल जो है ना 3 टाइम खा रहे थे आज से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले बोल लीजिए, ठीक है ना, सिर्फ नमक के साथ खा रहे थे। इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी ये कर रहे थे, क्योंकि इतना एक्सपेंसेस था, इतना एक्सपेंसेस था, इतने पैसे एक्सपेरिमेंट में जा रहे थे कि अपने हाथ में एक नींबू खरीदने का पैसा नहीं बच रहा था। तो ये बहुत बड़ा कुआं है जहां पे मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए मोती और खजाने निकाल दिए हैं। इसीलिए चीजों को होने दें, चीजों को होने दें, उंगली ना करें। क्योंकि इस बार जो है ना, बोलते ना भगवान खुद नहीं आता,
हम लोग भी कभी कभी अवाक रह जाते हैं कि हम लोग इतना बड़ा सीक्रेट डिकोड कैसे कर लिए। ये एल्गोरिदम जो इतना पूरा दुनिया पे राज कर रहा है, गूगल का, फेसबुक का, इंस्टा का, लिंक्डइन का, है ना। मैंने बार बार बोला है, ये जमाना नहीं है अर्जुन बनने का, ये जमाना नहीं है कृष्ण बनने का। ये सब जिनको नहीं पता है वो लोग भाषण दे रहे हैं कि अरे यार गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो। कुछ नहीं पढ़ो, ये सब कुछ नहीं। अभी आज के कोरा बकवास है। आपके जीवन में कोई युद्ध नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, आप एकदम पूरा फ्रीडम में हो, ठीक है ना। ऐसे में सिर्फ आपको कुरुक्षेत्र बनने की जरूरत है कि कितने आएंगे और आप पे अपनी गुलाटियां मारेंगे और निकल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मैंने आपको सीक्रेट बताया है। ये सिर्फ बिल्ड द ट्राइब, बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी और बनाना पैसा, और कुछ नहीं। देख लो इतना बड़ा रामदेव बाबा क्या किए, हलोम विलोम कपालभाति कराएं, आज देखिए कितना बड़ा इंडस्ट्री खोल के बैठ गए। जिसको ये सीक्रेट पता चलेगा वही ये काम कर पाएगा, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। आपको अपना ट्राइब बिल्ड करना होगा, आपको पुरुषोत्तम, है ना, paritoshsingla.com इमीडिएट स्टार्ट करना होगा। paritoshsingla.com से आपका फेसबुक पेज, आपका गूगल पेज, आपका गूगल मीट, आपका जितना प्लेटफॉर्म है सब हिट करेगा और सब जगह से लीड जनरेट होगा। पारितोष सिंगला और आपकी वाइफ का नाम paritoshsingla.com। आपकी वाइफ का नाम मुझे नहीं पता है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ जोड़ करके .com, ये तुरंत हर जगह हिट करेगा। हर जगह से रेवेन्यू जनरेट होने के लिए रास्ते बनेंगे। डेली बेसिस पे लोग आपके कम्युनिटी में नर्चर होंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेट करेंगे, अपने आप को फेसबुक में डालेंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, और आपने जो बोलना है वो बस आपने बोलना है। जैसे आपने सुना एक लाल किताब होता है। अब ये लाल किताब क्या होता है भैया? लाल किताब क्या है? तो निचोड़ दिया, बाकी के चीजों को निचोड़ के एक पर्टिकुलर मुंह, एक तरफ दिशा में मुंह करके 4 बातें लिख डाली, दैट्स कॉल्ड अ लाल किताब, ठीक है ना। पारितोष सिंगला जैसे शुभ वरदान, हर चीज पढ़ा हमने, हर चीज ऑब्जर्व किया, करंट अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ अमालगमेट किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आई एम अ शुभ वरदान। कोइंसिडेंटली मेरा नाम नवीन है, नई चीजों को करने के लिए मैं लाइबल हूं। मेरा बचपन में नाम पड़ गया था, लेकिन जब अपने नाम को समझा तो मेरी बिटिया पेट में थी तभी नाम पता नहीं था बेटा है कि बेटी है, नाम वरदान। और उसी समय मैंने माँ को बोल दिया था, माँ ये मेरी बिटिया है, इसको दुनिया सैल्यूट करेगी, ये लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरेगी, लोग तो सैल्यूट मारेंगे। पहले उसी दिन पेट में थी तभी बोल दिया। अब ये बात बोल दिया, मैंने बोल दिया, तो इसको सच कैसे करना है? तो मेरी जवाबदेही है ना, जादू तो होगा नहीं। मैं भी वही फीस भरता है स्कूल का। मैंने तो मेरे बेटे के मामले की मैंने स्टोरी शेयर की है। मैंने प्रिंसिपल के काउंटर पे हाथ पटक के बोला, तू खुद सैलरी लेने आया, तू मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? क्योंकि वो खुद मेरे बच्चे को हर ओलंपियाड में मेडल दे रहा है, वो हर एनुअल फंक्शन में और व्यवस्थाओं में मेरे बच्चों को गिफ्ट दे रहा है, और वो हर दिन मेरे को स्कूल पहुंचने पे कभी सिक्योरिटी गार्ड तो कभी मास्टर, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता। अबे तो तू प्राइस किसको दे रहा है? तेरे 60-70 तेरे क्लास में बच्चे हैं, तेरे एक है ना, और तू पूरे 180-200 बच्चों को, एक ही क्लास का स्टूडेंट में तेरे पास 3 सेक्शन है, तेरे में सब में 60-60 बच्चे हैं, तू 150 बच्चों के बीच में मेरे बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है, और तू मेरे बच्चों को डेली मेरे सामने कंप्लेन करता है। इसका मतलब तेरे को बच्चा समझ में नहीं आता कि बच्चा किस चिड़िया का नाम है, तेरे को बच्चा हैंडल करने नहीं आता है। बोले तेरे को पता भी है, कहने ना, मेरा एकदम सीधा सीधा बात है कि तेरे हाथ में आ गया खजाना, तेरे हाथ में कोई आ गया सोने की चिड़िया, तेरे को समझ नहीं, तो उसको काट देना चाहता है। इतना डोमिनेशन, इतना, अरे बच्चा है वो खेलेगा नहीं, वो अपने मन का करेगा नहीं, और तू उसको करने नहीं दे रहा है, तो उसको मेरे सामने इंसल्ट कर रहा है। और मेरा शुभ का क्या हालत है, मेरे वरदान का, इन लोगों को इंसल्ट, मैं एक बार भी अपना आवाज ऊंचा करके बोल देता हूँ ना, या फिर कुछ भी ऐसा अल्टर, क्योंकि हम लोग तो बिहारी हैं और हम लोग ट्रेडिशनल हैं, तो ट्रेडिशनल तरीके से बात करते हैं, वो लोग हिल जाता है, कांप जाता है। बचपन की बात है ना, मेरा बच्चा तो पॉटी करता था पैंट में, मैं डांटता था तो उसके पिछवाड़े गीले हो जाते थे। तो वो अलग तरह का सेंसेबल इंसान है, सेंस रखता है, हर चीज को सेंस लेता है। उसको पता चल गया कि ओलंपियाड का फॉर्म भरा है, और मम्मी से मम्मी 200 रुपये दो ना, वो ओलंपियाड का, वो फॉर्म भी खुद भरेगा, रात रात भर जाके। आज भी शुभ हम लोग को सुलाने के बाद सोता है, ये बचपन से कर रहा है। वो जब वो 1.5 साल 2 साल 3 साल का था तब तो हम लोग लगता था अरे बच्चा है, लेकिन वो उसका आदत, वो जन्म, पिछले जन्म से लेके आया है, उसके पास्ट लाइफ से ये बिहेवियर आया है। वो इतने केयर करता है, वो हम लोग सबको सुलाने के बाद
और वो कभी भी फोकट की चीजें नहीं किया यूट्यूब पे, वो बचपन से वीडियो बना रहा है। उसकी वजह से मैं अपना सारा कारोबार छोड़ करके ये सिस्टम में आया। मुझे लगा ये कौन बाप बैठा है जो मेरे बच्चों को फ्री में चीजें देता है, मैं भी तो जरा चेक करूं। तब बोला ये बहुत बड़ा गेमिफिकेशन है कि शॉपिंग मॉल में आपको है ना गाड़ी रखने के लिए सीटी बजा रहा है, बाजार में 20 रुपया ले रहा है ना, तो सुसु करने के लिए इतना अच्छा प्लेस दे रहा है, जहां पर इतना चमकीला प्लेस है सुसु करने के लिए शॉपिंग मॉल के अंदर में, एयर कंडीशन मॉल के अंदर में, उतना तो मेरा घर का बेडरूम भी नहीं है। ये यार क्या कर रहा है, ये कौन सा गेमिफिकेशन है जो मुझे नहीं पता है यार। हम लोग तो सारा दिन मेहनत करके पसीना निकाल रहे हैं, और ये तो यार लाखों रुपए का चीज फोकट में दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए मेरे को। ये कौन सा गेमिफिकेशन है भाई? हाँ, जितना एसी वो पूरा दिन में चलाता उतना तो मैं साल भर में ना चलाऊं। तो मुझे लगा कुछ तो है यार जो सब फ्री में बांट रहा है। ये क्या है जो फ्री में बांट रहा है? इसको समझो यार, ये बहुत बड़ा उद्गड़ है। और वहां से जो जर्नी चालू हुई, आज से 7-8 साल पहले से जर्नी चालू हुई है, और कोरोना काल में तो फिर भले भगवान ने हम लोग का सोने में सुहागा कर दिया। हम लोग बच्चों के साथ बैठ गए घर पे ही, वो सारी ताकतें जो है ना एक जगह इकट्ठा हो गई। पता चला कि मेरा बेटा क्या करता है, तो मेरी बेटी क्या करती है, तो मेरी वाइफ क्या करती है, मैं क्या करता हूं। अब सब एक जगह कमरे में बंद है, पकौड़ा खा रहे हैं और समझ रहे एक दूसरे को, कभी डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही रहा, शुरुआत ऐसे ही हुआ। मेरे यूट्यूब चैनल पे लगभग सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो चीजें ऐसे आसान तरीके से स्टार्ट होती हैं, या कुछ भी तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन जब आपका दिमाग को पता होता है कि मुझे क्या करना है, तो वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अभी आप लोग के पास बस इतना ही है ना कि दोनों हाथ में रसगुल्ला नहीं मिलेगा। यू हैव टू पे, तन मन एंड धन। चीजें बहुत गहरी हैं, ठीक है ना। जैसे कल ही एक सज्जन से बात हो रही थी, शायद ऑडियो मैंने शेयर भी किया। उसने बोला सर मेरे तो सवेरे 4 बजे से लेके ना 7 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ। तो क्या करते हो भैया? वो मेरा वही योगा एक्सरसाइज सब कुछ चलता है ना, साधना वादना करता हूँ। तो मैं एक ही बात तुझे बोला, अच्छा बताओ तो मैं कौन से कलर का शर्ट पहना हूँ? वो अकबका गया। तो बोला अच्छा ठीक है बोलिए, तो मेरा कौन सा शर्ट का मैं जो बैठा हूँ तो कौन से कलर का शर्ट पहना हूँ ना, कहाँ पे बैठा हूँ, मैं टेबल पे बैठा हूँ, जमीन पे बैठा हूँ, पलंग पे बैठा हूँ, कहाँ बैठा बताओ? वो अकबका गया, बोला नहीं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। तो 5 साल से यार तू माथा मारी कर, तेरे को साधना करने वाला इंसान को पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। मैं तो 15 दिन में करा दूं। ये 15 दिन में सामने वाले का शर्ट बता दो कलर, वो 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा होगा तो भी बता दोगे वो कौन से कलर का शर्ट पहना है। मैं तो आपका थर्ड आई ओपनिंग 15 दिन में करा दूंगा। जब आप साधना कर रहे हो, 4-4 घंटा डेली बैठे हो, है ना, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा कि आपके रसोई में प्रॉब्लम है, कि आपके बेडरूम में प्रॉब्लम है, कहां पर आपने कचरा जमा करके रखा है, आपका कौन सा चीज चेंज करना है, तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। 15 दिन में मेरे स्टूडेंट बता देंगे। आप 5 साल से कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही वाला कहानी सुनाया गौतम बुद्ध वाला, ये ऐसे ही है। आपने 15 साल लगा दिया और आप ठेंगा उच नहीं कर पा रहे, जो आप किया उसका 2 कौड़ी का आज का कीमत नहीं है। तो आपको करंट अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मैच होकर के अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा, तब मार्केट आपको रेस्पेक्ट करे। नहीं, बंदा वाकई में कुछ किया है, ठीक है ना। तो ये समझना होगा, ये भेजा को देखना होगा। आपके हाथ पे आप गैस कर लोगे सामने वाले के बॉडी में कहां तकलीफ है, आपके हाथ में आप गैस कर लोगे उसके पूरे घर का वास्तु, आपके हाथ में सेंसेस आ जाएंगे और आप बता दोगे कि बंदा के कहां पे वास्तु दोष है, ठीक है ना। सब कुछ सीखने वाले हो आप। मैं सब कुछ बारी बारी सिखाऊंगा, लेकिन किसको सिखाऊंगा? जो भूखा प्यासा बैठा होगा उसको समझ में आएगा, और जो टाइम पास कर रहा है, वो एंटरटेनमेंट करने आया, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है, ठीक है ना। आप सामने वाले को भर नजर देख लोगे ना, सामने वाला पूरा हिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपके अंदर ये ताकत होती है बाय डिफॉल्ट, आप उसको खाली जागृत करना पड़ता है। जिसको बोलते हैं ना कि हमने क्या बोला बार बार, कि भगवान ने आपको सांसें दी हैं और इस सांसों की गति को आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ बहुत खेला जा सकता है, खेलने की चीज है। जहां सांसों की गति के साथ खेलना शुरू किए, आपके मुद्रा, जैसे आप जब बटन दबा ऑन करते हो, जब मैं सारे उंगलियां दबाता हूं, मैच कराता हूं, है ना, जब ये सब करवाता हूं, ये सारे आपके सेंसेस हैं जो एक्टिव होते हैं। जो हमारे यहाँ पूर्वजों ने क्लैपिंग मारने का नियम छोड़ गया, ये सब सेंसेस एक्टिवेशन के शॉर्टकट्स हैं। इससे बहुत जल्दी सेंसेस एक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये सारे वो सब लॉजिक्स हैं। जब आप हाथ रब करते हो, मुंह पे ऐसे मलते हो, आंख पे रखते हो, ये सब बहुत जबरदस्त सेंसेस है, इसके बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस है और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं। इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है ना कि इमीडिएटली 15 सेकंड के अंदर में आपके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं और सामने वाले को आप स्कैन कर लेते हो। लेकिन इसके जो एल्गोरिदम्स हैं, जिगजैग्स हैं, उसको जहां समझोगे तब तो। और ये सेम चीज, जैसे मैंने बोला कि आप मान लो पैसे देने में नहीं सक रहे हो, या फिर आपने बोला था कि नवीन सर पैसा भिजवाऊंगा, नहीं भिजवा पा रहे हो,
5,000, 10,000, 1,000, 2,000 जो भी भेज रहे हो और आगे नहीं भेज पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने वो पिक्चर बनाई नहीं दिमाग में। मान लो सब कुछ हो गया, अब आपके ऐड लगने हैं, आपने ऐड में इमेज ही नहीं किया कि मेरा ऐड किसको जा रहा है। पता चल रहा है सब वो जो सरखाऊ संस्था है ना, वो आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो सरखाऊ संस्था आ रहा है तो आपको खुद ही बैठ के इमेज करना पड़ता है कि मेरे एड्स प्रोफेशनल्स को हिट कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट को, रिटायर डॉक्टर को, डॉक्टर प्रोफेशनल्स को मेरे ऐड हिट कर रहे हैं, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी भी है और जिसको इस चीज की तलब भी है। वो चाहता है कि वो मेडिसिन जिसको दे, वो चाहता है कि ये विद्या मैं जिसको सिखाऊं वो उसके काम में आ जाए। वो गलत मेडिसिन भी दे देगा तो भी उसके अंदर पॉजिटिव काम करेगा। तो ये जिसको इस बात का इल्म है कि नहीं मेरा पेशेंट मेरा सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का, तो वो मेरा पेशेंट मेरे हाथ का दिया हुआ 2 खुराक दवाई से ठीक होना चाहिए। तो ये बात जब वो अभिमंत्रित करके दे दे तो वो साउंड कर जाए, वो काम कर जाए। वो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर, वो कलाकारी कराने वाला मास्टर, वो स्कूल में पढ़ाने वाला वो ट्यूशन, वो मास्टर अगर जानता है कि मेरा बच्चा का 99% आएगा और वो उसके मेंटल प्रोग्रामिंग कर दे, उसका फ्रेम बना दे, उसको मेटाफॉर दे दे कि यार तू ये कर चुका ऑलरेडी, तू पास हो चुका अच्छे नंबरों से, तू आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गया, तेरे घर में पूरे मीडिया वाले आ रहे हैं, तेरे पेपर्स में हर तरह के पेपर्स में नाम छप रहा है, इवन अमेरिकन मीडिया और बाहर की विदेशी मीडिया सबने तेरा नाम छापा है। उसको पहले से फिगर मिल गया, उसको एक कुर्सी मिल गया, अब उस कुर्सी पे वो बैठ गया जहां, अब उसकी ललक क्या है? उस कुर्सी पे चढ़ने की ललक नहीं है, उस कुर्सी पे बने रहने की ललक है। जो मैं बोलता हूं कि इतना ऊपर ले जाऊंगा, इतना ऊपर ले जाऊंगा कि खुद ही वहां से नीचे देखने में डरोगे और खुद को वहां संभाल के रखोगे। तो ये मेटाफॉर है, आपको समझना होगा कि मुझे मेटाफॉर कैसे फ्रेम देना है लोगों को। जहां आपने ये कर दिया तो लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग इतने कमतरी हैं, इतने डरपोक हैं कि खुद को देखते ही नहीं है कि वो शानदार जीवन में के मालिक हैं। वो एकदम अपने आप को पे 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 अरे 25 लाख का लोन है, उसका फोन आ रहा है, अरे भूतनी क्या, अरे आने देना यार, तेरा गला पकड़ लेगा क्या? उसको पैसा मिल रहा है, उसका नौकरी है पैसा मांग के लाने का, वो अपना काम कर रहा है, तू अपना काम कर। तू उसकी बातों से क्यों हैरान परेशान हो रहा है? तेरा मालिक तू उसको क्यों बना रहा है? तू अपना मालिक खुद रहा, वो अपना काम कर रहा है। तो कहने दो, आपको रेस्पॉन्स नहीं पता, आपको कैसे उसको ओवरकम करना ये नहीं पता। और वही तो पतली लाइनें है ना, जिसको जहां आपने जान लिया आपका कल्याण हो गया, जो अभी आप कर रहे हो मॉर्निंग में, है ना? क्लियर है बातें यहां तक? कनेक्टेड? हाथ डालिए, 5 उंगली 4 उंगली सब में एक दूसरे में जोड़ जोड़ से मारिए, अंदर घुसा के। सारे सेंसेस हैं, सब जबरदस्त एक्टिव होता है, सब 15-15 सेकेंड में आपके पास मैजिक का पावर आता है इसके बाद। लेकिन वो अभी आप डिकोड करेंगे तब, अभी जब आपको सिखाएंगे तब, और उसके लिए हम पैसे लेंगे, फोकट में नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना? तो आप जब पैसा दे पाते हैं, ले पाते हैं, जो भी पैसे के साथ आपका व्यवहार है ना, वो सिर्फ बायस है, रेजिस्टेंस है। आपके बात आपके कान में छूता ही उसी वक्त है ना जब वो आपके लिए हकदार और दावेदार होता है। आपके कानों में ऐसे कोई बातें नहीं पहुंचती। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे मेरे क्लास में, है ना? मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बात को भगा दूंगा यहां से, ठीक है? आप लोग का टास्क पता चल गया। आप लोग को डेली अपनी लर्निंग से वीडियो कन्वर्ट करना है। हर एक आदमी अपनी जिम्मेवारियों को समझे कि मुझे करना होगा। मैं ये रियाज नहीं करूंगा तो मैं कल वो बड़ा वाला बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे मुंह हकलाएगा, मेरे दिमाग में बल बॉन नहीं होगा। आपके देखिए, मैं कभी भी कोई डिक्शनरी देख के बात करता हूँ, कोई भी कॉपी किताब देख के बात करता हूँ, मेरे दिमाग में वो अपने आप वो जो है ना ट्री बन चुका है। मुझे पता है कि मुझे कौन से डाली पे बैठा हूँ, मैं कौन से पत्ते और कौन से फल फूल की बात करने वाला, तो वो दिमाग में खुद ही पिक्चराइज है, मेरा विजुअलाइजेशन मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना? तो ये आपके साथ होगा जब आप रियाज करोगे। मैंने पागलों की तरह रियाज किया है, ठीक है ना? पिछले 4-5 सालों से हम लोग नैप पे हैं, हम लोग सोए नहीं है ढंग से, ठीक है ना? तो आपने ये समर्पण दिखाना पड़ेगा। और दूसरा भी, आप मे पे करने के लिए नहीं हो, मेरे पास बैठ के तो मिमियाना बंद ही कर दो आप, क्योंकि जो भी आपका इशू है ना वो तुरंत मुझे आप डिस्कस करो, मैं उसको सॉल्व करता हूं। और 1-to-1 करने के लिए मैं हर वक्त बोल चुका हूं कि आपको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा आओ मेरे साथ बैठ के 1-to-1 करो, मैं जूम पे लूंगा और आपका काउंसलिंग करके, आपका मेटाफॉर, आपका थीटा हीलिंग करके आपको तुरंत क्योर करूंगा। मैं पैसे तो नहीं मांग रहा आपसे। अगर आपको वाकई में अंदर से अच्छा नहीं फील हो रहा है, आपका व्यापार आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके चारों तरफ कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं तो बोला हूं आपको कि मैं तो पैसा नहीं मांग रहा, आप मुझसे बात करो पर्सनली, मैं आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे लेके आपका थीटा हीलिंग कर दूंगा, ठीक है ना? आपका दिमाग का लेवल रीवायरिंग कर दूंगा। तो मैं तो बोल रखा है, आपको ओपनली बोल रखा है, मेरा नियत ही आपकी मदद करना है, तो आपको टेंशन में नहीं आना है। जो बोल रहा हूँ वो करना है।
देवेंद्र जैसे आपको बोला हुआ है कि सर आपको अपना लर्निंग वीडियो शेयर करना है, आपका इंट्रो वीडियो शेयर करना है, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। बातों को हमारे यहाँ सिर्फ अमल में लेने के लिए अपने आपको 4 साल का बच्चा बना लीजिए, 4 साल का बच्चा बनाइए और मेरे इस क्लास में बैठिए। आपका प्रिंसिपलिज्म जहां तक आपको ला सकता था ले आया, इसके आगे कुछ नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है और इस परिवर्तन को आप रत्ती भर भी नहीं समझते हैं, खाली बस बातें आपके पास। ना 2G से आपके घर में 1 रुपया आया, ना 3G से 1 रुपया आया, ना 4G से आया, ना 5G से आया, अब 6G भी आ गया, ठीक है ना। ये जी का मतलब आपको पता ही नहीं है, आपके जीवन में जी से कोई लेना देना नहीं है, बस स्क्रॉल करना है ना, नचनिया देखना है मोबाइल पे। ऐसे नहीं होगा, प्रवचन सुनने का नहीं है। आप यहां पर पहुंचे हैं, आपकी भगवान ने आपकी मदद करी है, अब आपको उसको समझना है कि भगवान खुद नहीं आता, रास्ते खोलता है, रास्ते खोल दिया, अब आपको अमल लेना है। अधिकारी बाबू आपका वीडियो डेली आना चाहिए, मैं आपको क्लास में घुसने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, बार बार डांटता हूँ, बार बार आप डांट खाते हो और फिर सो जाते हो, और करे बाबू आपका भी वही हाल है। डेली पिछले 7 दिनों से मैं आपको फटकार लगा रहा हूँ, आप वीडियो नहीं बना रहे हो। हाँ, क्या चक्कर है जी, क्यों इतना सर में हेडेक लेके चल रहे हो कि आपको मेरी बातें आप सुनते हो, 7 दिन से सुन रहे हो आप, मैं आपको पूछ रहा हूँ और आप फिर भी नहीं कुछ कर रहे हो। अच्छा बात नहीं है, अपने आप को अफर्म करो, कॉपी में लिखो कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, और ठीक उसका अपोजिट कर दो कॉपी में कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं डेली नवीन सर के 20 वीडियो बना के ग्रुप में डाल रहा हूँ, बोलना खाली शुरू करो, अपने आप लगेगा अंदर में कि मैं डेली 20 वीडियो बनाता हूँ, अपनी लर्निंग्स को पूरी तरह से करता हूँ और हर लर्निंग्स के टॉपिक पे वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करता हूँ। लिखना शुरू करो, अरे 3-3 लाइन भी लिख लोगे ना तो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड आपको तमाचा मारना शुरू करेगा और आप फिर अपना काम में करने लग जाओगे। 3-3 लाइन लिखो कि मैं डेली नवीन सर के बोलने पे सारी लर्निंग कंप्लीट करता हूं और हर लर्निंग पे मैं वीडियो बना के ग्रुप में डालता हूं। लिखो अपने आप को डेली, देखो अपने आप आपका चलने लगेगा दिमाग। क्लियर है यहां मैसेज? जो चीज में नहीं आ रहा है ना उसको हाँ में बदल दो। लिखो पहले ये नहीं 1 बार, और उसके बाद 10 बार, 7 बार, 108 बार, जितना लिख सकते हो लिख दो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। मैं एक डायमंड मेंबर हूं वरदान कमेटी का, और पूरे जीवन की जो मेरी सफलता मैं हासिल करने वाला हूं ना, मेरा टारगेट इसी साल वो कर लेने का था और मैं वो कर भी रहा हूं। मतलब जो पूरे जीवन का मेरा था, मैं सोच रहा था कि सबसे ज्यादा मैं अपने मरते मरते क्या कर लूंगा, तो एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल का मालिक बन जाऊंगा और मैं पूरा वर्ल्ड टूर करके आ जाऊंगा। आपने इतना भी नहीं सोचा होगा देवेंद्र भाई, ठीक है ना, कि मैं एक बड़ा एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल का मालिक बन जाऊंगा और मैं पूरा वर्ल्ड टूर करके आ जाऊंगा, उसके बाद आराम से मरूंगा। तो ये पूरी जीवन की सफलता मैंने ऐसे सोची थी जो मैं सिर्फ इसी साल में कर लूंगा। बस जो चीज से आपको डर लग रहा है उसको पकड़ लो। जैसे बॉक्सिंग मार रहा है, बॉक्सिंग में तो आप क्या करते हो, भागता है नहीं, वो उसी को पकड़ लेता है। नोटिस करें आप, बॉक्सिंग रिंग में क्या होता है, सामने वाला अगर पंच मारे जा रहा है और वो नहीं मारने पा रहा है, वो वीक पड़ गया, तो वो क्या करता है, उसी बॉक्सिंग वाले को पकड़ लेता है जोर से और उसको फिर रेंज ही नहीं मिलता है मारने का। सेम चीज है, भागना नहीं है, आप उसका और क्लोज चले जाओ। बलवान हुआ, टाइप करे बीओ, तो भागने से सामने वाले को रेंज मिलेगा, आपको लथाड़ने का मौका ही नहीं देना, उसी को ग्रिप कर लो आप। क्लियर है? आपको मौका दे रहा हूं, अपनी टास्क कंप्लीट करें। देवेंद्र जी आपके इंट्रो वीडियो नहीं आए हैं, जो लोग पेड नहीं किए वो पे करें। ये सेशन 108 रुपये कीमत देने का पेमेंट करने का है। जो लोग जिस भी लेवल पे हैं उनको जो स्मॉल टिकट साइज दिया हो ना, जैसे वीक में एवरी फ्राइडे आपको देना चाहिए 369, तो ये आपको 369 देना ही देना है। ये आपके दिमाग के डोपामाइन को रिलीज करेगा कि मैं हर वक्त कीमत चुकाने को तैयार हूं। इवन आपने 5 लाख रुपए क्यों नहीं जमा करा दिया डायमंड मेंबर का, ठीक है ना। 1 तारीख से डायमंड मेंबर का प्राइस 5 लाख रुपए हो गया है, 4,25,000 प्लस जीएसटी 18%, ठीक है ना। तो उससे पहले जो था 1 तारीख तक मैंने आप लोग को ऑफर दिया था, वो सब बंद। अब 1 तारीख से प्राइस है 4,25,000 रुपये डायमंड का प्लस जीएसटी 18%। तो आपको समझना होगा, आप अफर्म करें। अगर आपको लगता है कि मैं शुभ वरदान के अंदर रह के पनप सकता हूं तो अफर्म करें। मैं सिखा रहा हूं, आपके पास 0 पैसा है, आज आपके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन अपने आप को आप डायमंड मेंबर माने और मैं जो बोलता हूं वो करें। पैसे भी टपकेंगे, देखिए मेरे हाथ में क्या है, मैं ऑलरेडी ग्रीन करके बैठा हूं, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको सिखा रखा हूं, क्या करना है, कैसे करना है, अपने शुक्र पर्वत को कैसे एक करना है, बाकी की चीजों को बता चुका कैसे एक्टिवेट करना है, सेंसेस कैसे एक्टिवेट करने हैं। मैंने एक लेसन आपको देना है, बार बार दे रहा हूं मैं, आपको मानना है। सुसु करने के बाद 4 कुल्ला,
पॉटी से उठने के बाद 12 कुल्ला, सब बता चुका हूं। ये सारे एक्सरसाइज हैं, इसको किसी को आप मत सोचिए कुल्ली करना है। 12 कुल्ला, पॉटी से उठने के बाद 12 कुल्ला, सुसु से निकलने के बाद 4 कुल्ला, ये करना ही है। सारे सेंसेस एक्टिवेशन है, किसी चीज को हल्के में मत लीजिएगा कि अरे क्या है, कुछ नहीं है, सब सेंसेस एक्टिवेशन है, ठीक है ना। जो जो रूल्स बता रहा हूं कौन फॉलो कर रहा है? पॉटी के बाद 12 कुल्ला कौन कौन कर रहा है? सुसु के बाद 4 कुल्ला कौन कर रहा है? रविंदर साहब, शैलेश भाई, बहुत अच्छे। खाने सिखा रहा हूं, उठने सिखा रहा हूं, बैठने सिखा रहा हूं, बोलने सिखा रहा हूं, डील करने सिखा रहा हूं, सब सिखा रहा हूं, ठीक है ना। सेंसेस एक्टिवेट करने सिखा रहा हूं, है ना, ट्रांस में लेने सिखा रहा हूं, है ना, टेलीपैथी सिखा रहा हूं, ग्राफोलॉजी सिखा रहा हूं, मतलब अष्ट सिद्धि नवनिधि सिखा रहा हूं, कबीर, रहीम, नानक, है ना, अष्टवक्र, सब सिखा रहा हूं। जल्दी जल्दी करो, पीछे मत रह जाना, ठीक है। डिजिटलाइजेशन सिखा रहा हूं, फनल, टेम्पलेट, है ना, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग, इंस्टा, फेसबुक, सब सिखा रहा हूं। ऐड कैसे लगाना है, प्रमोट कैसे करना है, मार्केटिंग करना है, सेल्स स्ट्रैटेजी बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त क्या दिमाग में सोचना है, क्या हाथ से करना है, सब बता रहा हूं। एक एक चीज बता रहा हूं कि अपने ऑडियंस लगाते वक्त, अपने टारगेट मार्केट लगाते वक्त भी वैसे नहीं कि मैं 40 साल 40 साल नहीं, 40 साल के बाद प्रोफेशनल लगा रहा हूं। प्रोफेशनल लगाने के बाद भी इमेज कर रहा हूं, बैठ के टेलीपैथी दे रहा हूं, फेसबुक ऐड को, गूगल ऐड को टेलीपैथी दे रहा हूं कि देख भाई तू सबसे अच्छा है, तेरे दम पे पूरी दुनिया का ताकत है, तू ऐसा कर कि मुझे जितने भी लीड देगा ना, सब रिटायर जज होंगे, मजिस्ट्रेट होगा, रिटायर ये होने वाले होंगे, ऐसे होंगे जिनके पास समझदारी होगी, जिन्होंने दुनिया देखा होगा, उनको ये सारी विद्याएं का ताकत है ना। प्रोफेशनल्स देना, मुझे वैसे देना जो काबिल लोग हैं, दुनिया की मदद करना चाहते हैं, तो वैसे लोग फिर आपके पास आएंगे, है ना। नहीं तो फिर वैसे ही कोई आ जाएगा कुच्चड़ दिमाग का आदमी, माथा खाएगा, बोलेगा मेरा लॉटरी नहीं लगा तेरे पास आने से, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, लॉटरी खोजने वाले आएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो आपको हर चीज करना पड़ता है, सजग जिसको बोलते हैं ना, कॉन्शियस होना, जो अभी आप सीखने वाले हैं। अभी जैसे ये 11 लेसन खत्म होगा ना, उसके बाद एक और 11 लेसन आएगा, जब आपका फिर समय आधा घंटा और ज्यादा हो जाएगा। मतलब अभी जो 11 लेसन 6:30 से 7 का है ना, एक और 11 लेसन दूंगा जो और पीछे जाएगा, यानी इस बार 5:30 से चालू होगा आपका म्यूजिक और 6 से लेकर 7 बजे तक आप चलोगे। उसी बात फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा तो फिर दायरे ऐसे वैसे बढ़ता जाएगा, तो फिर 3:30 से लेकर 8:30 5 घंटा का होगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे आपको, है ना। तो मिडिल में हमने रखा है 6:30 से 7, ये 6:30 से 7 ऐसे से बढ़ता जाएगा ना, 3:30 से 5:30, पूरा सवेरे का 5 घंटा आपका ले जाऊंगा। और वो भी आपको पता नहीं चलेगा, थकावट नहीं होगा, रात में जागोगे तो भी नहीं, 20 मिनट का नींद काफी होगा। वो सब सिखा दूंगा कैसे होता है, ठीक है ना। इसको पावर नैप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सभी लोग टाइप करें, पावर नैप, PN, पावर नैप। क्या आता है, पावर नैप। पावर नैप लेने सिखा दूंगा, ठीक है ना। 20 मिनट का नींद आपको पूरा फिट कर देगा, पावर नैपिंग सिखा दूंगा, है ना। PL साहब, आपका क्यों नहीं आया कल इंट्रो वीडियो? समय एक बार निकल गया नहीं लौटेगा, आपका छाती से प्राण निकल जाएगा ना, ठोक ठोक के प्राण वापस ला देंगे हम, लेकिन आपका समय निकल गया ना, मेरे पापा में भी ताकत नहीं है कि वापस ला सके, ठीक है ना। तो आप मर जाइए एक समय के लिए, लेकिन जो मैं बोला हूं वो कर जाइए, ठीक है ना। ओके, मिल्खा भाग भाग मिल्खा भाग, ठीक है, करिए। या फिर विदाई लेते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? हम लोग एक समुदाय हैं, कम्युनिटी, हम लोग सब लाइक माइंडेड लोग हैं, जो सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि अपने तप से, अपने साधना से, अपने पनपने की गुणवत्ता को इंप्रूव करके, अपने हैंड राइटिंग नहीं अपने माइंड राइटिंग को प्रूव करके, अपने सिग्नेचर को सिग्नेचर नहीं ऑटोग्राफ बना करके भारत की पहचान पूरे दुनिया में बुलंदी पहुंचाना। तो ये हमारा इंटेंशन है। हम लोग सबको यहाँ इसलिए है कि हमें हर देश का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ना, वो हमारे खाते का है, हमारे नाम का है, तो वो हमें हासिल करना है ना। कि मानवता के लिए, जीव के लिए, है ना, पूरे व्यवस्थाओं के लिए, कुदरत के लिए हम लोग वो काम करने वाले हैं जो सिर्फ हम ही लोग के लिए है जिम में, और हम लोग उसी के लिए अलाइन हो रहे हैं। क्योंकि पैसा हर वक्त बाय प्रोडक्ट था, पैसा है ना वो कभी पीछे भागने की चीज नहीं थी। हम अपना काम करेंगे, पैसा खुद आएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए आपके लर्निंग वीडियो और अपनी इंट्रो वीडियो और आपके पेमेंट सब रिलीज करके ग्रुप में डालिए।